My dear students, once again welcome to all of you. Students, in previous lecture we have to completed 4 questions of practice set 2.2. Okay student, in practice set 2.2 total 6 questions are there and 2 questions are remaining. So student, first we will complete remaining 2 questions and after completing these remaining questions we will start problem set 2. Okay my dear student, now see question number 5. This is related diagram of question number 5 and student, your question is here. What is the question? In the figure, ray AE is parallel to ray BD. Student, as you see in this diagram, ray AE, this is ray AE is parallel to ray BD and ray AF is the bisector. Student, this is ray AF. Ray AF is bisector of this angle and name of this angle is angle EAB. Student, this ray AF is bisector of this angle and ray BC. Student, this is ray BC. BC is the bisector of angle ABD. Student, this angle is angle ABD. This BC is angle bisector of this angle ABD. Prove that line AF is parallel to BC. Prove that line AF, this line, student, this line is AF and this line BC. Prove that line AF is parallel to line BC. Okay student, question is clear. Now once again I repeat this question. In this diagram, student, this is related diagram of question number 5. In this figure, ray AE. Student, where is ray AE? Student, this is ray AE. Ray AE is parallel to ray BD. Ray AF and ray AF, this is ray AF is bisector of angle EAB. Student, this is angle EAB and this ray is bisector of this angle and ray BC is bisector of angle ABD. Then prove that AF, line AF is parallel to line BC. Okay student, first write down given. Given means what information is given in question. First we write the all information which is given in the question. Okay student, what are given? Ray A is parallel to ray BD. Ray AE is parallel to ray BD. Student, as you see in this diagram, this is ray AE and this is ray BD. These two rays are parallel. This information is given and ray AF is bisector of ray AF. Student, this ray AF is bisector of this angle. Student, this ray AF is bisector of this angle and name of this angle is angle EAB. Ray AF is bisector of angle EAB. Okay student, EAB and also BC is bisector of this angle. Bisector means divide into 2 equal parts. Okay student, this BC is bisector of this angle and ray AF is bisector of this angle. Bisector means ये जो रे AF है ना, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड रे BC and ray BC is bisector of रे BC किसका बाइसेक्टर है? एंगल ABD का. सो रे BC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD. देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना हमको? लाइन AF इज पैरेलल टू BC. क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? लाइन AF. तो जो प्रूव करना है कौन से हेडिंग में लिखते हैं? टू प्रूव में लिखते हैं. क्या प्रूव करना है? लाइन AF
is parallel to line BC. ओके स्टूडेंट, दिस वन इज क्लियर ना। चलिए क्वेश्चन को पहले हम लोग रफली समझते हैं। रफली मतलब रैंडमली, ऐसे हम लोग पहले समझ लेते हैं रफली, उसके बाद हम लोग सिस्टमैटिक सॉल्यूशन इसका लिखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट, दिस रे AE इज पैरेलल टू BD एंड दिस AB कंसीडर एज अ ट्रांसवर्सल। ध्यान से देखना, पहले हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रफली समझ रहे हैं। ए किसके पैरेलल है, BD के पैरेलल है। A इज पैरेलल टू BD एंड AB इज कंसीडर एज अ ट्रांसवर्सल। तो क्या आपको समझ में आता है क्या, ए एंगल, ये जो ऑरेंज कलर से मैं बना रहा हूं, ए एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा बताइए, अल्टरनेट एंगल्स। स्टूडेंट, दिस रे AE इज पैरेलल टू BD। अच्छा, डायग्राम अगर मैं बना के आपको दिखाऊं तो AE हो गया और ये BD हो गया एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब डायग्राम में देखिए, AE किसके पैरेलल है, BD के पैरेलल है एंड दिस AB इज कंसीडर एज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर स्टूडेंट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। if a transversal intersect two parallel lines, then their alternate angles are equal. Okay student, therefore this angle is equal to this angle. कौन सा एंगल इक्वल हो बताइए, इसका नाम क्या है एंगल का, एंगल EAB। चलिए इसको लिखते चलते हैं। एंगल EAB किसके इक्वल हो गया, इस एंगल के इक्वल। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल, एंगल ABD, एंगल ABD। तो चलिए बात समझ में आ गई क्या। लेट दिस इज इक्वेशन 1, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। चलिए और हम लोग देखते हैं इसमें। स्टूडेंट, दिस AF क्या है, बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, इस एंगल का बाइसेक्टर है। यहां देखो ऑरेंज कलर से हमने जो बनाया, इस एंगल का बाइसेक्टर क्या है, AF। बाइसेक्टर समझते हैं ना, जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अच्छा, इसमें जो एंगल A है, FAB। स्टूडेंट, दीज टू एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज हाफ ऑफ एंगल EAB। बात समझ में आए क्या, AF क्या है, बाइसेक्टर है, दिस AF इज बाइसेक्टर, तो इसका मतलब A एंगल इसके इक्वल हो गया। अच्छा, और A एंगल जो है पूरे एंगल का हाफ है, ये जो बड़ा वाला एंगल है इसका हाफ A है और इसका हाफ A है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, अच्छा ये ध्यान में रखिए, ध्यान में क्या रखना है, हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है AF इज पैरेलल टू BC। स्टूडेंट, वी विल प्रूव दैट इन दिस क्वेश्चन AF इज पैरेलल टू BC। अच्छा, अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि ये एंगल इक्वल इसके है, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देन स्टूडेंट दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स, these two angles are alternate angles and we know that if alternate angles are equal then the lines are parallel। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, ए एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, इसके। अगर ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल कैसा है, इक्वल है। और जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है। तो चलिए स्टूडेंट, दिस AF इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल EAB। ये दिख रहा है क्या स्टूडेंट, दिस एंगल इज EAB, ये बाइसेक्टर है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड ईच एंगल इज हाफ ऑफ एंगल EAB। ए एंगल जो है ये बड़े वाले एंगल EAB का आधा है, EAB का आधा A है। तो यहां पर हमको इसकी जरूरत है, तो मैं यहां पर कौन सा एंगल कंसीडर कर रहा हूं, FAB। कौन सा एंगल, FAB। ये किसका हाफ हो जाएगा, EAB का हाफ हो जाएगा, एंगल EAB। बात समझ में आई क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज यही है, हमने एंगल EAB का FAB कंसीडर किया, ए एंगल, इसको नहीं कंसीडर किया। क्यों नहीं कंसीडर किया, लास्ट में हमको क्या प्रूफ करना है, AF इज पैरेलल टू BC। तो AF और BC के लिए देखो ये दोनों अल्टरनेट एंगल बनेंगे, तो हम ये दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, दिस नेम ऑफ दिस एंगल इज एंगल FAB, दिस एंगल इज हाफ ऑफ एंगल EAB। EAB का हाफ है, EAB का A भी हाफ है, लेकिन हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमने इस एंगल को कंसीडर किया।
and student now this BC, student BC is bisector of this angle. This information is given. This BC is bisector of this angle. It means this angle is equal to this angle, and each angle means this angle and this angle. Each angle is half of angle ABD. पूरे एंगल का आधा ए है और पूरे एंगल का आधा ए है, लेकिन हमको इसकी जरूरत है। इसकी मतलब कौन से एंगल की? एंगल ABC। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं? एंगल ABC। दिस एंगल इज हाफ ऑफ एंगल ABD, इज हाफ ऑफ एंगल ABD। बताइए इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये देखो BC क्या है? बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या? ए एंगल इसके इक्वल और एक एंगल, ए एंगल पूरे एंगल का आधा ए है और पूरे एंगल का आधा ए है। तो बात समझ में आ गई क्या? दिस एंगल ABC, दिस एंगल ABC इज हाफ ऑफ एंगल ABD। नाउ स्टूडेंट दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। अब जरा 1 2 3 को ऑब्जर्व करिए। स्टूडेंट ऑब्जर्व इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 सेज एंगल EAB is equal to एंगल ABD, EAB is equal to एंगल ABD। तो क्या यहां से स्टूडेंट एंगल ABC is half of एंगल ABD, ओके, एंड दिस एंगल EAB is half of एंगल। अच्छा यहां से EAB, अगर यहां से हम लोग EAB की वैल्यू निकालते हैं तो 2 को इधर कर दूं मैं। यहां इक्वेशन 2 से देखो, 2 को हमने इधर कर दिया तो यहां पर क्या मिल गया? ट्वाइस ऑफ एंगल FAB इज इक्वल्स टू एंगल EAB, इज इक्वल्स टू एंगल EAB। ये इक्वेशन 2 से देखिए। और इक्वेशन 3 जो हमने बनाया है, 2 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ABC, दिस इज इक्वल्स टू एंगल ABD, दिस इज इक्वल्स टू एंगल ABD। स्टूडेंट अब ये यहां से आप बताइए एंगल EAB किसके इक्वल है? एंगल ABD के। मतलब EAB किसके इक्वल हो गया? ABD के। राइट हैंड साइड ऑफ दीज टू इक्वेशंस आर सेम, देयरफॉर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड विल बी सेम। लेफ्ट हैंड साइड्स आर ट्वाइस ऑफ एंगल FAB, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। बात समझ में आई क्या? ये देखिए एंगल EAB और एंगल ABD। यहां इक्वेशन 1 से क्या बता रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। अब दोनों साइड में देखिए 2 2 कैंसिल हो गया। यहां से क्या मिला? एंगल FAB इज इक्वल टू एंगल ABC। अब जरा डायग्राम में इसको हम लोग चेक करते हैं कि इसको एंगल FAB कहां है। एंगल FAB, स्टूडेंट FAB मीन्स दिस एंगल ना, ये देखो रेड कलर का, दिस इज एंगल FAB, ओके, दिस इज एंगल FAB एंड दिस एंगल इज एंगल ABC, एंगल ABC। तो ये दोनों एंगल देखो यहां से इक्वल मिल गया, यहां से इक्वल मिला स्टूडेंट, बट दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स and if alternate angles are equal it means lines are parallel। तो बात समझ में आ गई क्या? रफली समझ में आ गया क्या? अच्छा अगर कुछ डाउट है तो अब हम लोग सिस्टमेटिक सॉल्यूशन लिखेंगे तो जो डाउट रहेगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए अब इसका हम लोग सिस्टमेटिक सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज प्रूफ। फर्स्ट हेडिंग क्या हम लोग लिखते हैं? गिवन। गिवन के बाद क्या लिखते हैं? टू प्रूफ। टू प्रूफ के बाद क्या लिखते हैं? प्रूफ। अच्छा एक और हेडिंग आती है कंस्ट्रक्शन, लेकिन हर एक क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो लास्ट हेडिंग क्या हो गई? प्रूफ। तो इसमें AE किसके पैरेलल है? BD की। जैसे हमने रफली किया था अब इसको सिस्टमेटिक आंसर लिख रहे हैं। स्टूडेंट दिस रे AE इज पैरेलल टू BD। ये देखो गिवन भी है तो यहां पर हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सिंस रे AE इज पैरेलल टू रे BD। ये आपने कहां से लिखा? ये इंफॉर्मेशन दिया है तो इसका रीजन लिख देंगे। रीजन में क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। स्टूडेंट दिस रे AE इज पैरेलल टू BD एंड AB कंसीडर एज अ ट्रांसवर्सल। यहां ये भी मेंशन करना है AB इज एज अ ट्रांसवर्सल, AB इज
एज अ ट्रांसवर्सल। ओके स्टूडेंट, अच्छा ए बी को हमने ट्रांसवर्सल लिया, ए किसके पैरेलल हो गया, बी डी के, तो यहां से देखो ये एंगल अल्टरनेट एंगल, अभी हमने आपको डायग्राम में समझाया था, alternate angles are equal, these two lines are parallel and this is considered as a transversal, therefore this angle, name of this angle is angle EAB, this is equals to this angle ABD। तो यहां पर क्या लिख दूं मैं, angle EAB, therefore angle EAB, this is angle EAB, this is equal to this angle ABD equal to angle ABD. Let this is equation 1 and its reason is alternate angles। इसका रीजन क्या लिखेंगे, alternate angles, alternate angles। अच्छा alternate angles क्यों, इफ अ ट्रांसवर्सल, स्टूडेंट इसको हमने क्या कंसीडर किया, ट्रांसवर्सल, ए और बी डी पैरेलल है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन देयर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, नाउ एएफ इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, तो इसको फिर से यहां पर मेंशन करना है, सिंस एएफ रे एएफ इज बाइसेक्टर ऑफ एएफ किसका बाइसेक्टर है बताओ, इस एंगल का ना, इस एंगल का बाइसेक्टर है और इसका नाम क्या है, एंगल EAB। ये देखो गिवन में भी दिया है, रे एएफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB, रे एएफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB, तो यहां पर क्या लिख देंगे, गिवन। स्टूडेंट दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। अच्छा अब बताइए AF अगर बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, एंड स्टूडेंट ईच एंगल इज हाफ ऑफ एंगल EAB, तो हमको मैंने बताया कि हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हम इसको कंसीडर करें, कौन सा एंगल, FAB, देयरफॉर एंगल FAB दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल EAB। बात समझ में आई क्या, ये पूरे एंगल का आधा A है और इस पूरे एंगल का आधा A है, तो हमको इस एंगल की जरूरत है, कौन से एंगल की, FAB की, तो FAB इज हाफ ऑफ एंगल EAB। तो चलिए ये 2 को हमने इधर कर दिया, तो यहां से 2 इधर आ गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल FAB दिस इज इक्वल्स टू एंगल EAB। okay student, let this is equation number 2 and now this BC is bisector of angle ABD। once again mention this information, ray BC, कौन सी रे, BC is bisector of एंगल। अच्छा ये BC किसका बाइसेक्टर है, ये एंगल का, और ये एंगल का नाम क्या है, एंगल ABD, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD। ओके स्टूडेंट, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, सो राइट इट्स रीजन इज गिवन। ओके स्टूडेंट, अच्छा इफ दिस इज बाइसेक्टर मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, लेकिन हमको कौन से एंगल की जरूरत पड़ेगी, इस एंगल की, और इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ABC। सो वी हैव टू राइट हियर एंगल ABC is half of angle ABD, is half of angle ABD। now these two taken this side becomes in multiplication, 2 taken this side, now we get twice of angle ABC। इस 2 को जब इधर लाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, twice of angle ABC is equals to angle ABD। student let this is equation number 3rd। okay, now observe equation 1, 2 and 3। student observe equation 1, 2 and 3। equation 1 is angle EAB is equal to angle ABD। ये ध्यान से देखो ABD किसके इक्वल है, EAB के। इक्वेशन 2 में देखो EAB यहां पर क्या है, ABD है। मतलब अगर हम लोग इक्वेशन 1, 2, 3 का यूज करते हैं तो 1 क्या बता रहा है, एंगल EAB किसके इक्वल है, एंगल ABD के। इट मींस फ्रॉम इक्वेशन 1 राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 and 3 आर सेम। स्टूडेंट प्लीज
listen carefully. From equation 1, this angle AEB is equal to angle ABD. From equation 1, we can say right hand side of equation 2 and right hand side of equation 3 are equal. Therefore, its left hand side will be same. Now we have to write from equation 1, 2 and 3. तो चलिए मैं यहां से थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, यहां आप नोट कर लेना. ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3. From equation 1, 2 and 3. Okay student, EAB is equal to ABD. EAB is equal to ABD means its left hand sides are equal. Left hand side of equation 2 is twice of angle FAB. This twice of angle FAB and left hand side of equation 3, this is equal to twice of angle ABC. Okay student, this 2 cancel out by this 2 cancel हो गया. Therefore we get angle FAB, this is equals to angle ABC. कौन सा एंगल इक्वल मिल गया हमको? एंगल FAB इज इक्वल टू एंगल ABC. अब जरा डायग्राम में इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं. कौन सा एंगल? FAB. तो ये देखो यही एंगल ना FAB. This angle is FAB and ABC. Student, this angle is angle ABC. These two angles are equal and they are alternate angles. Student, these two angles are equal and they are alternate angles. And student, we know that if alternate angles are equal, then the lines are parallel. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? ये दोनों एंगल इक्वल मिल गया ना. कौन सा एंगल? FAB. किसके इक्वल? ABC के. FAB किसके इक्वल? ABC के. तो इसका मतलब क्या हुआ? AF पैरेलल है. किसके पैरेलल है? BC के. तो यहां पर क्या लिखेंगे? Therefore line AF is parallel to line BC. अच्छा, अब इसका रीजन क्या लिखेंगे? ये दोनों एंगल इक्वल है. स्टूडेंट, these two angles are alternate angles. Therefore these two lines are parallel. तो इसका रीजन लिखेंगे by alternate angle test. By alternate angles test. Okay student. Now write its reason by alternate angles test. बाय अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट. और ध्यान से देखो, यही हमको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया. तो फिर लास्ट में आप क्या लिखते हो? हैंस प्रूव्ड. ओके स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ओके, नाउ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन. नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 6. अ ट्रांसवर्सल EF ऑफ लाइन AB एंड लाइन CD intersects the lines at point P and Q respectively. Ray PR and ray QS are parallel and bisectors of angle BPQ and angle PQC respectively. Prove that line AB is parallel to line CD. Okay student, this is question number 6 and this is the related diagram of question number 6. तो बात समझ में आई क्या? ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका रिलेटेड डायग्राम में दिया है. अब इसमें क्या दिया है? This is transversal. This EF is transversal of line AB and line CD. Line AB and CD पैरेलल है कि नहीं? अभी ऐसा नहीं दिया है. स्टूडेंट, this EF is transversal of line AB and CD. अच्छा, अब क्या इंफॉर्मेशन दिया है? This ray PR bisector of this angle. This angle means angle BPQ. ये एंगल जो BPQ दिख रहा है, इसका ये एंगल BPQ, इसका बाइसेक्टर क्या है? रे PR है. इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है. बात समझ में आ रही क्या? These two angles are equal because of this PR is given that bisector of this angle. Okay student, now this QS is bisector of this angle. This ray QS is bisector of this angle. What is the name of this angle? PQC. PQC का बाइसेक्टर है QS. तो हमको क्या प्रूफ करना है? Then prove that
AB इज पैरेलल टू CD। बात समझ में आ गई क्या? सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि इसमें क्या गिवन है, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है, तो फिर क्या आप प्रूफ करोगे? तो बात समझ में आई क्या स्टूडेंट? दिस EF is transversal of line AB and CD, and this PR is bisector of this angle, and this QS is bisector of this angle. Then prove that line AB is parallel to line CD. तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं? फर्स्ट क्या लिखते हैं? गिवन। क्या लिखोगे पहले? गिवन। गिवन में क्या लिखते हैं? जो इंफॉर्मेशन दिया रहता है। अच्छा, इंफॉर्मेशन क्या दिया है? EF इज अ ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ AB एंड CD। EF इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ EF किसका ट्रांसवर्सल है? ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन AB एंड CD। तो बात समझ में आ गई। एंड रे PR इज बाइसेक्टर ऑफ अच्छा, रे PR किसका बाइसेक्टर है? एंगल का नाम आता है क्या? परफेक्ट नाम आता है। आपको कैसे लिखना है? इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ? BPQ। तो PR किसका बाइसेक्टर हो गया? एंगल BPQ का। तो यहां पर क्या लिखेंगे? रे PR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ। ओके स्टूडेंट, एंड दिस रे QS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQC, एंड रे QS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQC। देन प्रूव दैट को क्या लिखते हैं? टू प्रूव मीन्स क्या होता है? हमको क्या प्रूफ करना? व्हाट वी विल प्रूफ इन दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्या प्रूफ करना है? लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। ओके, तो चलिए रफली मैं पहले एक बार आपको समझाता हूं। रफली हम लोग इसको एक बार देखेंगे, फिर इसका हम लोग सिस्टमेटिक सॉल्यूशन लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये PR क्या है? बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? इस एंगल का बाइसेक्टर है। अच्छा, इसमें जो एंगल QPR है, ध्यान से देखो, एंगल QPR कौन सा एंगल? QPR। दिस एंगल QPR इज हाफ ऑफ एंगल BPQ। बात समझ में आई क्या? दिस एंगल, because of student this PR is bisector of this angle, means each angle means this angle is half of this angle, and also this angle is half of angle BPQ। ये BPQ बड़ा वाला एंगल है ना, इसका आधा ये एंगल है और इस एंगल का हाफ ए है। बात समझ में आ गई? एंगल QPR, दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस एंगल, एंड स्टूडेंट दिस QS is bisector of this angle, so we have to write here angle PQS। कौन सा एंगल? PQS। ये किसका हाफ हो जाएगा? ये देख रहे हैं ना एंगल PQS, डायग्राम में दिखा क्या? ये एंगल PQS, ये जो रेड कलर से हमने बनाया, दिस एंगल इज PQS इज हाफ ऑफ दिस एंगल। Student, this QS is bisector of this angle. It means each angle out of these two angles, each angle is half of this angle PQC. Okay student, therefore this angle PQS is half of angle PQC, but student this PR is parallel to QS। ये भी तो दिया है ना, PR किसके पैरेलल है? QS के। PR is parallel to QS। Yes student, this information is given। PR, a transversal EF of line AB and line CD intersect the lines at point P and Q. Ray PR and ray QS are parallel। Student, this information is given। This line PR, ध्यान से देखो इधर डायग्राम में, दिस लाइन PR इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये दोनों लाइन पैरेलल है,
इसको हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं, ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। if a transversal intersect two parallel lines, then their alternate angles are equal. It means this angle is equal to this angle. What is the name of this angle? Angle QPR. Angle QPR. This angle is equal to this angle. What is the name of this angle? Angle PQS. Angle PQS. अच्छा यहां से क्या मिल गया, QPR किसके इक्वल है, PQS के। ये देखो QPR किसके इक्वल हो गया, PQS के। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल होगा। क्या है राइट हैंड साइड दोनों का, हाफ हाफ एंगल BPQ, दिस इज इक्वल टू हाफ एंगल PQC। दोनों साइड में हाफ है, हाफ कैंसिल हो गया। अच्छा बताइए क्या बचा यहां से, एंगल BPQ, दिस इज इक्वल टू एंगल PQC, इक्वल टू एंगल PQC। अच्छा अब ये दोनों एंगल जरा डायग्राम में खोजते हैं, किधर है डायग्राम में, ये दोनों एंगल डायग्राम में, कौन सा एंगल, BPQ, ये पूरा एंगल यही ना, दिस एंगल इज BPQ, ये किसके इक्वल आ गया, एंगल PQC, ये पूरा एंगल आ गया। ये दिखा क्या डायग्राम में, स्टूडेंट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल मिल गया क्या आपने को, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड स्टूडेंट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, and we know that if alternate angles are congruent, it means lines are parallel। बात समझ में आ गया क्या, चलिए सॉल्यूशन इसका लिखते हैं अभी। ओके स्टूडेंट, नाउ राइट इट्स सिस्टमैटिक सॉल्यूशन। नाउ वी हैव टू राइट इट्स सिस्टमैटिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट फर्स्ट वी हैव टू राइट दिस, PR is parallel to QS, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, और हमने यहां पर मेंशन नहीं किया है, चलिए यहां पर मेंशन कर देते हैं, क्या, रे PR is parallel to ray QS। ओके, नाउ हेडिंग इज प्रूफ। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग क्या हम लोग डालते हैं, गिवन, सेकेंड हेडिंग क्या डालते हैं, टू प्रूफ, इसके बाद कंस्ट्रक्शन, लेकिन इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो लास्ट हेडिंग क्या आ जाएगी, इसमें प्रूफ आ गया। तो प्रूफ में देखो PR इज पैरेलल टू QS, हम सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, सिंस रे PR इज पैरेलल टू रे QS, ये कहां से आपने लिखा, गिवन, मतलब ये इंफॉर्मेशन दिया है। स्टूडेंट दिस रे PR इज पैरेलल टू QS, तो ए एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, तो इसमें क्या है, PQ क्या है, ट्रांसवर्सल, तो यहां लिख देंगे PQ इज एज अ ट्रांसवर्सल, PQ इज एज अ ट्रांसवर्सल। ओके, this PR is parallel to QS and this is considered as a transversal, therefore this angle is equal to this angle। what is the name of this angle, angle QPR। तो क्या लिखूं यहां पर, एंगल QPR, this angle is equal to this angle, name of this angle is PQS, एंगल PQS। लेट दिस इज इक्वेशन 1। अब इसका रीजन बताओ क्या लिखूं, अल्टरनेट एंगल्स। स्टूडेंट दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स बिकॉज ऑफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, सो इट्स रीजन इज अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ओके स्टूडेंट, एंड नाउ PR is bisector of this angle। Now we have to write PR, रे PR, कौन सी रे, PR is bisector of एंगल। अच्छा बताओ PR किसका बाइसेक्टर दिया, इस एंगल का, और इसका नाम क्या है, BPQ। किसका बाइसेक्टर है, BPQ का। अच्छा बाइसेक्टर का मतलब आपको समझ में आ गया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड ईच एंगल इज हाफ ऑफ दिस एंगल BPQ। तो हमको इसकी जरूरत है, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं एंगल QPR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BPQ, हाफ ऑफ एंगल BPQ। ये समझ में आया क्या,
each angle, this is bisector, therefore each angle is half of angle BPQ. Okay student, understood now? This angle QPR is half of this angle. Let this is equation number 2, and also this QS is bisector of angle PQC. And चलिए यहां पर लिखता हूं अभी, and ray QS is bisector of रे QS किसका बाइसेक्टर है? इस एंगल का बाइसेक्टर है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? PQC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQC. स्टूडेंट, दिस इज बाइसेक्टर, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड ईच एंगल इज हाफ ऑफ एंगल PQC. ये बात समझ में आ रही क्या? ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब जितना मेजरमेंट इसका उतना ही मेजरमेंट इसका. ये देखो 30, ये 30 हो गया, तो टोटल कितना होगा? 60 होगा. ये देखो 60 का आधा ए और 60 का हाफ ए, तो वही मैं रिलेशन लिख रहा हूं PQS. Therefore angle PQS means this angle is half of angle PQC, is half of angle PQC. Okay student, let this is equation number 3. Okay student, and now observe equation 1, 2 and 3. What is the equation 1? एंगल QPR is equal to एंगल PQS. तो यहां ध्यान से देखिए, एंगल QPR किसके इक्वल है? एंगल PQS के. तो अब इक्वेशन 2 में आ जाओ. एंगल इक्वेशन 1 क्या बता रहा है? ये जो QPR है ना, किसके इक्वल है? एंगल PQS के. तो ये QPR, ये देखो PQS के इक्वल है. फ्रॉम equation 1 we can say left hand side of equation 2 and 3 are same. इक्वेशन 1 से क्या हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं? ये जो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है. इफ एनी टू इक्वेशंस हैविंग लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, then its right hand side will be equal. Okay student, from equation 1, 2 and 3, from equation 1, 2 and 3, तो 1, 2, 3 तीनों को मिलाकर के कंक्लूजन क्या निकला? QPR किसके इक्वल है? PQS के. तो ये QPR किसके इक्वल हो गया? PQS के. तो इसका मतलब दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा. राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 इज हाफ ऑफ एंगल BPQ, हाफ ऑफ एंगल BPQ. एंड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 इज हाफ ऑफ एंगल PQC. अच्छा, दोनों साइड में हाफ है तो हाफ हाफ कैंसल हो गया. क्या यहां से बचा? एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल PQC. ओके स्टूडेंट, एंगल BPQ. अच्छा, अब डायग्राम में देखो एंगल BPQ किधर है? एंगल BPQ यहां से क्या हमको मिल गया? एंगल BPQ दिस इज इक्वल टू एंगल PQC. तो एंगल BPQ किधर है? ये देखो येलो कलर का बना दिया मैंने. ये दिस इज एंगल BPQ, यही एंगल ना BPQ. दिस इज इक्वल टू एंगल PQC. स्टूडेंट, दिस एंगल, ये देखो इधर, ये एंगल PQC, ये एंगल BPQ, ये दोनों एंगल इक्वल मिल गया. स्टूडेंट, दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स. ये दोनों एंगल कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल है. और यहां से क्या मिला? ये दोनों अल्टरनेट एंगल कैसे हैं? इक्वल हैं. स्टूडेंट, इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इट मींस लाइंस आर पैरेलल. ये दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं. अच्छा, ये दोनों अल्टरनेट किसके लिए है? लाइन AB और CD के लिए. लाइन AB और CD के लिए दोनों अल्टरनेट एंगल हैं. अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसका मतलब लाइंस कैसी? लाइंस आर parallel. Okay student, so we have to write here therefore line AB, this line AB is parallel to line CD. इसका रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल्स. क्या रीजन लिखना है? अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट. यहां पर क्या लिखेंगे? बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट. ओके स्टूडेंट, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था ना. ओके स्टूडेंट, नाउ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन.
Okay, my dear student, after completing the practice set 2.2, now we will start problem set 2. Its first question is, select the correct alternative and fill in the blanks in the following statements. Student, these questions are MCQ. MCQ means क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के साथ में 4 ऑप्शन दिया रहेगा और हमको ये डिसाइड करना है स्टूडेंट which ऑप्शन इज करेक्ट. According to given question, we will decide which option is correct. Student, first question contains 5th sub questions. Okay, now first is, if a transversal intersect two parallel lines. आपका क्वेश्चन इधर दिख रहा है, क्वेश्चन आप देखते रहो. If a transversal intersect two parallel lines, then the sum of interior angles on the same side of the transversal is. दिस इज वेरी सिंपल स्टूडेंट, दिस इज द प्रॉपर्टी. और कई बार हमने आपको बताया है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री समझते हैं क्या? दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री. ओके स्टूडेंट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. इन ऑप्शन सी 180 डिग्री इज गिवन, सो स्टूडेंट ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी. ओके स्टूडेंट, एंड नाउ सेकेंड इज, द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस इज. द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस इज. जब कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को कट करती है तो टोटल कितने एंगल बनते हैं? हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म by a transversal when it cut two lines? Student, total 8 angles are formed, so its option C is correct. In option C 8 is given, so its option C is correct. Now student, third one is, क्वेश्चन इधर आप देखते रहो, क्वेश्चन आपका इधर है, दिख रहा है क्वेश्चन. Now third one is, a transversal intersect two parallel lines if the measure of one of the angle is 40 degree. A transversal intersect two parallel lines. If the measure of one of the angle is 40 degree, then the measure of its corresponding angle is. Student, this question is also very easy. If a transversal intersect two parallel lines, if one angle is 40 degree, then its corresponding angle is also 40 degree. Because of, if a transversal intersect two parallel lines, then its corresponding angles are congruent. Corresponding angles are congruent. If one angle is given 40 degree, then its corresponding angle is also 40 degree. So in third, option A is correct. In third option A is correct. ऑप्शन ए में कितना दिया? 40 डिग्री. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट, नाउ फोर्थ वन इज, इन ट्रायंगल ABC angle A is 76 degree and angle B is 48 degree. Therefore angle C is equals to what? Student, in triangle ABC, question is given that in triangle ABC angle A is 76 degree. एंगल ए कितना दिया? 76 डिग्री. एंड एंगल B is given that 48 डिग्री. देन फाइंड एंगल C. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल C? कैसे फाइंड आउट करोगे? स्टूडेंट, वी नो दैट इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री. स्टूडेंट, डू यू नो दिस प्रॉपर्टी? Sum of all the interior angles of a triangle is 180 degree. So we have to write angle A plus angle B plus angle C is equal to कितना? 180 degree. But angle A is given that 76 and angle B is given that 48 and we will find angle C. So angle C write as it is. This is equals to 180. अच्छा, ये दोनों को प्लस कर लो. 8 plus 6 कितना आ गया? 14. 7 plus 4 11. 1 कैरी कितना हो गया? 12. 124 plus angle C is equal to 180 degree. Now angle C is 180. This 124 taken this side becomes minus 124. तो 180 में से क्या माइनस कर देंगे? 124. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 0 minus 4, सब्ट्रैक्शन आपको आता है, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा.
तो यहाँ पर कितना एक कैरी दे दिया था 7 - 2 कितना हो गया 5 हो गया 56 डिग्री एंड 1 - 1 इज 0. Angle C we get angle C is 56 degree. Student, in option B 56 degree is given, so its option B is correct. In fourth part option B is correct. Okay student, now see its fifth question. Two parallel lines are intersected by a transversal. Two parallel lines intersected by a transversal. Two parallel lines intersected by a transversal. Two parallel lines intersected by a transversal. If the measure of one of the angle in the pair of alternate interior angles is 75 degree, then the measure of the other angle. Okay student, question is two parallel lines are intersected by a transversal. Two parallel lines, suppose that these two lines are parallel lines, two parallel lines intersected by a transversal. Two parallel lines intersected by a transversal. If the measure of one of the angle in the pair of alternate interior, pair of alternate interior, student alternate interior, यही ना alternate interior, pair of alternate interior angles, one angle is given that 75 degree, so find other angle. What is its measure? Student, this is also 75 degree, because of if two parallel lines intersected by a transversal, therefore its alternate angles are equal. Okay student, understood now? In fifth question option C is given that 75 degree, so its option C is correct. Okay my dear student, completed now? Okay my dear student, now second question is ray PQ and ray PR are perpendicular to each other. Student, two rays are given, ray PQ and ray PR are perpendicular to each other. क्या दिया है? ray PQ is perpendicular to ray PR. Student, there are two rays, ray PQ and ray PR. Ray PQ and ray PR are perpendicular to each other. Points B and A are in the interior and exterior of angle QPR respectively. Ray PB and ray PA are perpendicular to each other. Draw figure showing all these rays and write. Student, पहला काम क्या है? पहले तो डायग्राम बनाना है. क्या बोल रहा है? ड्रॉ फिगर्स शोइंग ऑल दीज रेज. ये जो रेज दिया है ना, इसके अकॉर्डिंग हमको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है. तो रे पी क्यू एंड रे पी आर परपेंडिकुलर. स्टूडेंट, दीज टू रेज आर परपेंडिकुलर. तो चलो इसका डायग्राम हमने ऐसे बना दिया. स्टूडेंट, देयर आर टू रेज. कौन कौन सा? पी क्यू एंड पी आर. तो यहां पर हमने लिख दिया पी क्यू. स्टूडेंट, रे पी क्यू and ray PR, ray PQ, let this is ray PQ and this is ray PR. Student, these two rays are perpendicular, means they are making 90 degree angle with each other. And after this points B and A, दो पॉइंट दिया है. अब ये पॉइंट कैसा है? पॉइंट्स B and A are in the interior and exterior of angle QPR. Angles points B and A. कौन कौन सा पॉइंट दिया है? B and A are interior and exterior of angle QPR. Angle QPR. अब इसका मीनिंग आपने समझा क्या? पॉइंट्स B and A are interior. पहला वर्ड क्या यूज किया? इंटीरियर. are interior and exterior of angle QPR. Student, this is angle QPR. ये एंगल QPR है ना, इसका इंटीरियर पार्ट ये हो गया, ये इसका इंटीरियर हो गया. बात समझ में आ रहा है क्या? ये इसका जहां मेरा हाथ है आपको दिख रहा है,
दिस रीजन इज इंटीरियर ऑफ एंगल QPR, और इसके बाहर सब क्या है, एक्सटीरियर है। स्टूडेंट देयर आर 2 पॉइंट्स B एंड A आर इंटीरियर, पहला वर्ड इंटीरियर यूज कर रहा है, पहला पॉइंट B है, उधर पहला वर्ड क्या है, इंटीरियर। पॉइंट्स B एंड A आर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल QPR, मतलब ये दोनों पॉइंट B और A, एक पॉइंट इसमें इंटीरियर में है, इस एंगल के इंटीरियर में एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इसके एक्सटीरियर में है। तो चलिए यहां पर पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट ले लिया B, दिस इज पॉइंट B, और इसके बाहर हम यहां पर एक पॉइंट ले रहे हैं, कौन सा पॉइंट ले लिया, A। अच्छा, और एक कंडीशन इसमें दिया है, रे PB, तो यहां से रे PB ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, दिस इज रे PB एंड रे PA, और ये क्या है, रे PA है। रे PB एंड रे PA आर परपेंडिकुलर, ये दोनों भी परपेंडिकुलर हैं। PB किस पे परपेंडिकुलर है, PA पर परपेंडिकुलर है। ओके स्टूडेंट, चलिए डायग्राम में मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये देखो ए एंगल मतलब किसके बीच का, ये ऑरेंज कलर से किसके बीच का, 90 डिग्री में बता रहा हूं, PB एंड PA आर परपेंडिकुलर। रे PA इज परपेंडिकुलर टू रे PB। ओके स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया। अच्छा, ड्रॉ फिगर, तो फिगर हमने ड्रॉ कर दिया। एंड राइट मतलब क्वेश्चन दिया है, उसका सॉल्यूशन लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फर्स्ट क्या लिखना है, अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। स्टूडेंट डू यू नो complementary angles? A pair of complementary angles. What is the complementary angles? Complementary angles क्या होता है स्टूडेंट? if sum of two angles is 90 degree then they are called complementary angles. तो इसमें क्या लिखना है, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझो। पहला काम क्या था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको फिगर बनाना था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, डायग्राम बना दिया। अब इसमें बोल रहा है कि राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट राइट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दो एंगल ऐसा लिखो, ऐसा एंगल्स का पेयर बनाओ जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो। कॉम्प्लीमेंट्री समझ रहे हैं क्या, जिसका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अब इसमें डायग्राम में देखो, ये 90 डिग्री है, और इसमें ध्यान से देखो दो एंगल है। वन एंगल इज दिस एंगल BPQ एंड एंगल BPR, these two angles making angle QPR and this angle QPR is 90 degree. Okay student, so we have to write here angle QPB या BPQ लिख सकते हैं, एंगल BPQ। स्टूडेंट दिस एंगल प्लस दिस एंगल दोनों मिलके क्या हो गए, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों हुआ, ये देखो रे PQ और रे PR, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल कितना, 90 डिग्री। सो एंगल BPQ प्लस दिस एंगल BPR प्लस एंगल BPR। अच्छा, ये दोनों एंगल मिलके कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल QPR, एंगल QPR। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना this angle plus this angle is equal to angle QPR, but student angle QPR is 90 degree, angle QPR is 90 degree, angle BPQ plus angle BPR is equal to 90 degree। ये जो QPR लिखा है, this angle is QPR, student this angle is QPR and this angle is 90 degree। why this angle is 90 degree student? Because of PQ is perpendicular to PR. Okay, now its reason is PQ is perpendicular to PR। ये PQ और PR दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसके लिए ए एंगल, कौन सा एंगल, QPR is 90 डिग्री। अच्छा, अब बताओ ये दोनों का सम कितना आ गया, 90 डिग्री।
तो क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? यस स्टूडेंट, इफ सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल BPQ एंड एंगल BPR is a pair of complementary angles, is a pair of complementary angles। ओके स्टूडेंट, अच्छा एक पेयर तो यहां से मिल गया। अच्छा एक और देख रहे हो 90 डिग्री है, कौन सा 90 डिग्री है? ये देखो PB इज परपेंडिकुलर टू PA, तो ये एंगल 90 हो गया। और इस एंगल में देखो दो एंगल है, वन एंगल इज दिस BPR एंड एंगल BPR प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल एंड नेम ऑफ दिस एंगल इज APR, एंगल APR। ये दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं? एंगल APB, एंगल APB। ओके स्टूडेंट, देयरफॉर एंगल BPR प्लस एंगल APR। अब बताओ यहां 90 लिख दूं, 90 डिग्री। अच्छा ये ध्यान से देखो एंगल APB, ये देखो दोनों 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? ये PA इज परपेंडिकुलर टू PB, ये देखो दिया है PA इज परपेंडिकुलर टू PB। If two lines, two rays are perpendicular to each other, then they are making 90 degree angle with each other। Okay student, अच्छा ये दोनों का सम कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अच्छा इसका मतलब ये दोनों एंगल कैसे हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देयरफॉर एंगल BPR एंड एंगल APR is a pair of complementary angles, is a pair of complementary angles। Okay student, clear na? This first part is clear na? Okay, now write down its solution। Now its second part is write a pair of supplementary angles, write a pair of supplementary angles, write a pair of supplementary angles। Student, do you know supplementary angles? Do you know supplementary? Student, do you know supplementary angles? Supplementary angles क्या होता है? If sum of any two angles is 180 degree, if sum of any two angles is 180 degree student, then angles are known as supplementary angles। मतलब अगर दो एंगल को हम लोग प्लस करते हैं, प्लस मतलब एडिशन, इफ एडिशन ऑफ टू एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दो एंगल ऐसे फाइंड आउट करना है जिसका सम करने पर कितना आता है? 180 डिग्री आता है। तो एक एंगल ये देखो 90 डिग्री है, कौन सा एंगल? एंगल QPR, एंगल QPR कितना है? 90 डिग्री। और दूसरा कौन सा 90 है? APB एंगल, एंगल APB इज 90 डिग्री। तो दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। देयरफॉर स्टूडेंट दिस एंगल एंड दिस एंगल इज अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ राइट डाउन हियर एंगल QPR प्लस एंगल QPR मीन्स दिस एंगल प्लस दिस रेड कलर का एंगल APB, एंगल APB दोनों कितना आ गया? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? यहां पर क्या लिख देंगे? ईच एंगल इज 90 डिग्री। देयरफॉर सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल QPR एंड एंगल APB इज अ pair of supplementary angles, is a pair of supplementary angles। Okay student, this one is clear now? Now note down its solution। Okay student, now third part of this question is write a pair of congruent angles। Third part is write a pair of congruent angles। Student, what are the congruent angles? If two angles having same measurement, then they are called congruent angles। Congruent angle means equal angles,
इफ टू एंगल्स हैविंग सेम मेजरमेंट, मतलब अगर दो एंगल दोनों का मेजरमेंट सेम है देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल। मतलब एक एंगल अगर 30 डिग्री दूसरा भी 30 डिग्री है तो दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। सो थर्ड पार्ट इज राइट अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, राइट अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब इस डायग्राम से हम लोगों को वो एंगल फाइंड आउट करना है जिसका मेजरमेंट सेम है। तो आप देख रहे हैं एक एंगल है 90 डिग्री है, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल QPR। एंगल QPR कितना है, 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, रे PQ इज परपेंडिकुलर टू रे PR। ओके स्टूडेंट, रे PQ इज परपेंडिकुलर टू रे PR एंड आल्सो दिस रे PA is perpendicular to PB, therefore this angle is also 90 degree. Angle APB is also 90 degree because of AP is perpendicular to AP किस पे परपेंडिकुलर है, PB पर परपेंडिकुलर है। So student we can say these two angles are congruent angles. Okay student, now therefore angle QPR and angle APB are congruent angles, congruent angles को हम लोग कैसे लिखते हैं, एंगल QPR दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल APB। क्लियर ना, एक पेयर मिल गया। अच्छा इसमें एक और पेयर है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का, लेकिन वो डायरेक्टली हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एंगल QPR, अब यहां ध्यान से देखो, एक पेयर तो ये मिल गया स्टूडेंट, दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, सो वी गेट वन पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल फाइंड अदर पेयर, एंगल QPR दिस इज इक्वल्स टू एंगल APB, दिस इज इक्वल्स टू एंगल APB। अरे यही अभी प्रूफ किया ना, एंगल QPR किसके इक्वल है, एंगल APB के। यहां ध्यान से देखो, एंगल QPR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल APB। एक पेयर यहां से हमको मिला है, सेकेंड पेयर फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस एंगल QPR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल APB, यही रिलेशन हम यूज कर रहे हैं यहां पर। एंगल QPR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल APB, तो इसका सोल्यूशन यहां से आप स्टार्ट करेंगे। एंगल QPR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल APB। अब एक एंगल QPR स्टूडेंट, एंगल QPR is sum of two angles, this angle BPQ and this angle BPR। एंगल QPR दो एंगल को प्लस करने पर बन रहा है। ये एंगल QPR में देखो दो एंगल है, तो इसकी जगह मैं ऐसा लिख दूं, कैसा लिख दूं, एंगल BPQ प्लस एंगल BPR। देखो डायग्राम में, दिस एंगल QPR इज सम ऑफ दिस टू एंगल्स अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, एंड एंगल APB स्टूडेंट, एंगल APB, वेयर इज एंगल APB स्टूडेंट, वेयर इज एंगल APB स्टूडेंट, दिस एंगल इज एंगल APB। ओके, एंड दिस एंगल APB इज सम ऑफ टू एंगल्स, वन एंगल इज एंगल APR एंड सेकेंड एंगल इज एंगल BPR। So student, APB, in place of APB we can write here angle APR plus this angle APR plus this angle BPR plus this angle BPR। अच्छा दोनों साइड में देखो एंगल BPR, ये दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया, एंगल BPQ दिस इज इक्वल्स टू, इक्वल लिखो चाहे कॉन्ग्रुएंट लिखो, बोथ आर द सेम, एंगल BPQ दिस इज इक्वल्स टू एंगल APR। तो देखो एक दूसरा पेयर हमको मिल रहा है स्टूडेंट। इन दिस डायग्राम टू पेयर ऑफ एंगल्स विच आर कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट, नाउ क्लियर ना, एक पेयर यहां से मिला जो कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा पेयर यहां से मिला जो कॉन्ग्रुएंट है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना। नाउ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन।